नेक्स्ट इज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं. सो ध्यान देंगे 3 इक्वेशंस हैं. हाउ मेनी? 3 इक्वेशंस. 3 इक्वेशंस कौन सी हैं? फर्स्ट इक्वेशन को हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड को बोला जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम टेकन और एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बिल्ड अप कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ को. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की. इक्वेशन ऑफ मोशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. Equations of motion of uniformly accelerated motion. Equations of motion of uniformly accelerated motion. So first we talk about first equation of motion. सबसे पहले बात किसकी करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? v इज इक्वल टू u प्लस at. v is equal to u plus at. With the help of this equation or this equation gives the velocity of a body in time t. So time t के बाद जो velocity है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से. सो लेट अस कंसिडर, मान लो let us consider the initial velocity of the body. मान लीजिए किसी बॉडी की जो initial velocity है, initial velocity of the body is equal to u. initial velocity क्या है? u. after then it is subjected to acceleration a. उसके बाद ये मूव करने लगी विद एक्सेलरेशन a के साथ. Then after time t, comma, the final velocity be final velocity क्या होगी? let it be v, capital V. So then acceleration, you know acceleration क्या है? change in velocity, rate of change of velocity per unit time. change in velocity upon time, rate of change of velocity, or change in velocity upon time. So it is equal to final velocity upon final velocity minus
initial velocity. Final velocity minus initial velocity upon time. So final velocity यहाँ पे जो है it is capital V and initial velocity is u upon t. So a is equal to v minus u upon t. नोट डाउन प्लीज, नोट करते चलेंगे साथ साथ में. So a is equal to v minus u upon t. So at is equal to v minus u and v is equal to u plus at. So v is equal to u plus at के बराबर. क्या किया हमने? सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी जो थी हमारे पास v और इनिशियल वेलोसिटीज़ u सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को, एंड टाइम इज़ t. a इज़ इक्वल टू a एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी. a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. ए टी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए टी इज़ इक्वल टू v माइनस यू एंड v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी. सो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. So four different quantities हैं यहाँ पे: velocity, final velocity, initial velocity, acceleration and time. So with the help of this equation, if three different terms are known, then we can easily find out the fourth quantity easily. So this equation also help us to solve the equations of retardation. So this is about first equation of motion. Next is second equation of motion. अब बात करते हैं second equation of motion क्या है. Second equation of motion. Second equation of motion. Second equation of motion. So second equation of motion क्या है? It is s is equal to ut plus half at square. Second equation is s is equal to ut plus half at square. So s क्या है? Distance, u initial velocity, t time taken, a acceleration, and this is time taken. So let मान लीजिए average velocity is equal to as average velocity is equal to initial velocity plus final velocity, initial velocity plus final velocity divided by 2. Initial velocity plus final velocity divided by 2 means v plus v upon 2. This is the average velocity. Also distance
is equal to average velocity multiply by टाइम। तो मालूम है जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वलेंट है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को। डिस्टेंस इज एस, सो एस इज इक्वल टू, साथ में लिख सकते हैं आप, दिस इक्वेशन हेल्प्स टू फाइंड, दिस इक्वेशन गिव्स द, और दिस इक्वेशन हेल्प्स टू फाइंड distance of a body in time t, distance of a body in time t. So average velocity into time, distance is equal to average velocity into टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस वी बाई टू इंटू, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम इज t। सो s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू t। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सो ऑल्सो वी नो दैट, हमें मालूम है क्या, ऑल्सो वी नो दैट from first equation of motion, also from first equation of motion, v is equal to u plus at। let this be equation number 2, v is equal to u plus at। सो इस v की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 1। सो सब्स्टिट्यूटिंग the value of, किसकी वैल्यू, v, और substituting the value of v in v from equation 2, in 1। सो इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सो वी गेट s इज इक्वल टू u प्लस v के प्लेस पे u प्लस at अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई t। सो s इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे ut प्लस at स्क्वेयर अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s इज इक्वल टू ut प्लस ut क्या हो जाएगा, 2ut प्लस at स्क्वेयर। ut और ut दोनों को ऐड अप कर दिया, 2ut प्लस at स्क्वेयर, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया 2 इंटू s। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, let this be equation number 3। so now dividing equation 3 by
डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई किससे डिवाइड कर देंगे, 2 के साथ, 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। सो s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, ut प्लस 1/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/2 a t square. So s is equal to ut plus half a t square. This is the second equation of motion. So next is third equation of motion. Third equation of motion. So ध्यान देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2as के बराबर. सो दिस इक्वेशन गिव्स द, और with the help of this equation gives the velocity acquired by body. इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं फिर, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as. इक्वेशन gives the velocity acquired by body in a distance s, in a distance s. So as we know that second equation of motion, हमें मालूम है कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एज वी नो दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. s इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर के. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड first equation of motion. First equation of motion is v is equal to u plus at. So therefore let this be equation number 2. From equation 2 से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, t की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. v minus u is equal to at. Therefore t is equal to v minus u upon a. Let this be equation number 3. इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 3 मान ली. अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम t को एलिमिनेट करेंगे, t की जगह पुट कर देंगे ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. सो बिल्कुल सिंपल है, स्टेप्स की तरफ ध्यान देंगे, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, t की वैल्यू को. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में. देयरफॉर substituting the value of t in t from equation 3
from equation 3 in equation 1 किस में पुट कर देंगे, 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो 1 थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. सो u इंटू टी, u t को रिप्लेस कर देंगे v माइनस u अपॉन a के साथ प्लस 1/2 a t स्क्वेयर v माइनस u अपॉन a होल स्क्वेयर. सो u मल्टीप्लाई कर देंगे u v माइनस u स्क्वेयर अपॉन a u v माइनस u स्क्वेयर अपॉन a प्लस 1/2 a v माइनस u का होल स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर. सो u v माइनस u स्क्वेयर अपॉन a प्लस 1/2 a, इसको सॉल्व कर लेंगे. v माइनस u होल स्क्वेयर मीन्स a माइनस b का होल स्क्वेयर v स्क्वेयर प्लस u स्क्वेयर माइनस 2uv माइनस 2uv. सो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे v स्क्वेयर प्लस u स्क्वेयर माइनस 2uv अपॉन a स्क्वेयर. एंड दिस इज इक्वल टू s. सो नोट करते चलेंगे साथ साथ में. सो देयरफॉर s इज इक्वल टू, s किसके इक्वलेंट है, uv माइनस u स्क्वेयर, uv माइनस u स्क्वेयर अपॉन a प्लस 1/2a, 1/2a. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे स्क्वेयर से a कैंसिल. सो v स्क्वेयर प्लस u स्क्वेयर माइनस 2uv अपॉन 2 इंटू a. a से a कैंसिल आउट हो गया. सो ये लेफ्ट विद 2 इंटू a. सो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू 2a 2uv माइनस 2u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर प्लस u स्क्वेयर माइनस 2u इंटू v. s इज इक्वल टू. सो अब यहाँ पे देखेंगे जो जो टर्म अगर कोई कैंसिल आउट होने वाली है, प्लस 2uv, यहाँ है माइनस 2uv, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और माइनस 2u स्क्वेयर और प्लस u स्क्वेयर. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू माइनस u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर अपॉन 2a एंड इट इज़ इक्वल टू s. सो s इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2as इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर. सो इम्प्लाइज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as, which is third equation of motion, or v square is equal to u square plus 2as. Third equation of motion, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and s is the distance traveled.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशंस. इन सभी को हमने सिंपल मेथड से किया है. अब नेक्स्ट हम इसके बाद ग्राफिकल मेथड से करेंगे. फर्स्ट यू नोट डाउन दीज.